Hi guys, in this video I'm going to talk about my placement journey, and this video is not going to be any motivation video. In this video I'm going to talk about the complete process that I went through until I cracked my current company. So like many of you might be preparing for the internships and full-time jobs right now. तो आप like काफ़ी relate कर सकते हैं to my journey. So before moving on to my journey, let me give a brief introduction about myself. So myself Kashish Shukla, and I'm doing my BTech in Computer Science and Engineering, and right now I'm in final year of my graduation. So let's move towards the journey. तो ये प्लेसमेंट की जर्नी कुछ 9-10 महीने पहले शुरू हुई थी, एंड इनिशियली इट वाज ऑन एंड ऑफ. मतलब लाइक मैं कोई टॉपिक पढ़ रही होती थी एंड अगर मुझे वो डिफ़िकल्ट लगता था या नहीं समझ में आता था, देन आई यूज टू टोक लाइक लॉन्ग ब्रेक्स. जैसे लाइक एक हफ्ते का ले लिया या लाइक 10-15 दिन का ले लिया. सो मतलब इनिशियली ऑन एंड ऑफ ही चल रहा था. So my serious preparation started around 6 months before the start of my placement session. तो like ऐसे ही 5-6 महीने seriously prepare करने के बाद I finally got placed. But believe me, that journey was not that easy. तो like थोड़ा rewind करते हैं. तो मैंने 5-6 महीने अच्छे से लगकर मेहनत करी, and when my preparation was about to end, then I started applying for various job openings, and I used to like start messaging on LinkedIn to my connections for referral. So like initially 1-2 महीने उसी में निकल गए, and like काफ़ी कम लोगों का ही reply आता था, and मेरा resume भी like shortlist नहीं होता था. Even my resume got to reject at that time. तो वो like काफ़ी ज़्यादा depressing phase था मेरा. I even used to cry, and I still remember मेरी मम्मी और मेरे भाई मुझे मतलब समझाते थे कि कशिश कीप ऑन ट्राइंग, हो जाएगा एंड हार मत मान अभी. सो आई केप्ट ऑन ट्राइंग. तो बेसिकली लाइक इट्स ऑल अबाउट द परसिवरेंस दैट यू होल्ड. एंड मेरी एक चीज़ हमेशा याद रखना कि when you are preparing for something and like you are in the middle of your journey or even like close to your destination, तो कभी भी like बीच में quit मत करना. क्योंकि अगर आपने एक बार quit कर दिया ना, then it would be really difficult to come back at that same point, right? बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको वापस से उस जगह पर आने के लिए. So it's better to keep on trying. And like most of the लोग यही मात खा जाते हैं कि वो बीच में अपनी जर्नी को रोक देते हैं, and then they don't even start again. So always keep on trying, and success obviously like ज़रूर मिलेगी if you are putting in the efforts. बस डालते रहना है आपको on the consistent basis. आज तो आप लोग ये देखकर आ गए कि मेरा 30+ CTC का पैकेज है, but at that time I couldn't even imagine this thing. So it's all about the determination and perseverance that you have. So finally, instead of quitting, I tried to figure out where I was lagging. तो सबसे पहले तो मैंने अपना resume ठीक किया. I talked to some of my seniors and I got my resume reviewed by them. So they told me to make some changes. So after making all those changes, finally my resume was getting shortlisted now. Then finally मेरी first placement हुई at the package of 4.5 LPA, and to be honest मेरे को उसका interview process and online test काफ़ी easy लगा. And then मैंने सोचा कि अगर 4.5 LPA का ऐसे ही निकल सकता है मतलब इतना easily, then why not try harder. So basically I continued doing my preparation, and this time with more efforts. So then eventually मैंने अपनी second placement crack करी, which was at 5 LPA. But this time also I wasn't much happy, cause like the company which I cracked at the 5 LPA, that very same company, and for the very same profile, it offers around 18 LPA at Tier 1 and Tier 2 colleges. So that's why like I was not much happy with that placement. Then instead of like regretting about all these things, I kept on giving as many interviews as I can.
बोथ ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस. सो इनिशियली काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैंने रिजेक्शन भी फेस किया, मतलब किसी में कुछ गलती करी, किसी में कुछ गलती करी, बट एवरी टाइम वन थिंग वॉज ऑलवेज कॉमन कि मैं जितने भी इंटरव्यूज़ दे रही थी आई वॉज ऑलवेज लर्निंग समथिंग फ्रॉम दैम. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई इंटरव्यू दिया एंड इन दैट इंटरव्यू आई वॉज नॉट एबल टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. Then what I used to do is I used to note down all those topics which I was not able to answer properly, and after the interview I used to like go through those topics and study them properly, so that when I'm asked about those topics in my next interview तो मैं उनको अच्छे से आंसर कर दूँ. Otherwise there is no point of like getting rejected in every interview if you are not learning anything from them, right? So आपको भी मतलब लाइक ऐसे ही करना है. ये नहीं कि मतलब आप इंटरव्यू देकर आ गए एंड आप रिजेक्ट हो गए तो आप लाइक बस रो रहे हो या इंटरव्यूअर को कोस रहे हो या इवन खुद को कोस रहे हो. सो दैट शुड नॉट बी योर लाइक टेक. इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज आप शांत दिमाग से बैठिए एंड सोचिए व्हाट मिस्टेक्स यू डिड एंड लाइक किस वजह से मतलब आपका वो इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, व्हाट वर योर वीक पॉइंट्स. तो वहां पर लाइक आप इम्प्रूव करने का ट्राई कीजिए कि आपके लाइक नेक्स्ट इंटरव्यूज में फिर आप वो मिस्टेक्स करोगे नहीं एंड आपके मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंटरव्यूज जाएंगे. एंड लाइक यू वोंट बिलीव कि इनिशियली जो मैं इंटरव्यूज देती थी वो मतलब लाइक इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं जाते थे. एंड लाइक लेटर ऑन आई कुड सी द प्रोग्रेस इन द रिजल्ट. सो बेसिकली हर एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस मुझे कुछ ना कुछ सिखा कर गया है. एंड यू शुड ऑल्सो लाइक रिलाई ऑन दिस प्रिंसिपल कि जो कुछ भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो उनसे लर्न करो एंड देन फर्दर जो आप इंटरव्यूज दो उनमें वो मिस्टेक्स ना करो. ठीक है. सो आपने लाइक ये सेइंग सुनी भी होगी कि यू ईदर विन और लर्न, एंड दिस इज वेरी मच ट्रू. सो सीखते रहिए, इवेंचुअली सब सही हो जाएगा. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, लास्ट इंटरव्यूज में आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेयर यू नीड टू मेक सम डिसीजंस, एंड ये क्वेश्चंस आपके टेक्निकल भी हो सकते हैं और बिहेवियरल भी हो सकते हैं. तो लाइक आंसर करने के टाइम पर तो आप इनको आंसर कर दीजिए, बट जब आपका लाइक इंटरव्यू खत्म हो रहा होता है तब आपसे इंटरव्यू हमेशा पूछेगा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी और नॉट. तो उस टाइम पर हमेशा मतलब आप उनसे ऐसे पूछ सकते हैं कि सर या मैम, like if you were at my place then how would you have approached this problem. ठीक है. तो इससे क्या होता है ना कि मतलब आपको ये भी पता चल जाता है कि जो आंसर आपने दिया था वो सही था या नहीं. प्लस दूसरी चीज ये होती है कि यू गेट टू नो द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द अदर पर्सन. ठीक है. प्लस आपको ये भी पता चलता है कि व्हाट आर द अदर वेज ऑफ सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है. तो ये क्वेश्चन ना आप हमेशा मतलब पूछा करिए लास्ट में, क्योंकि होता क्या है ना मतलब किसी इंटरव्यू में सपोज करो आप मतलब श्योर नहीं थे उस पर्टिकुलर आंसर के लिए. ठीक है. देन आपने कुछ आंसर अपना बता दिया एंड देन लास्ट में इंटरव्यूअर से पूछा तो उसने अपने अकॉर्डिंगली उसका आंसर बता दिया. ठीक. मतलब इन क्वेश्चंस का क्या होता है ना कि कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक आंसर नहीं होता, तो मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. तो आपको मतलब पता चल जाएगा कि अगर वो आपकी जगह होते तो वो किस तरीके से इसको आंसर करते. ठीक है. फिर जब आप नेक्स्ट कंपनीज के इंटरव्यू दोगे ना तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चंस ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप इनको लाइक अच्छे से आंसर कर पाओगे. एंड जब तक मेरा किसी अच्छी कंपनी में नहीं हुआ था दैट टाइम वाज रियली डिमोटिवेटिंग. मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं फालतू ही इतनी मेहनत कर रही हूँ, कुछ तो आउटपुट आ ही नहीं रहा है. एंड आई वॉज रियली डिप्रेस्ड एट दैट टाइम. मतलब मेरा लाइक रूम से बाहर निकलने का तक मन नहीं करता था. एंड कॉलेज जाने से तो एकदम लाइक चिड़ी होने लगी थी, किसी को फेस दिखाने का मन नहीं करता था. आई यूज टू अवॉइड टॉक्स एंड लिंक्डइन खोलने से सिर्फ एंजाइटी ही होती थी. तो मैंने लिंक्डइन भी मतलब काफ़ी टाइम के लिए बंद कर दिया था, ऑलमोस्ट 21 डेज के लिए. एंड ये जो फेस था मेरा, इसमें आई वॉज ऑलवेज कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर्स. जब पोस्ट दिखते थे लिंक्डइन पर स्क्रॉल करते टाइम कि इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, तो आई वॉज ऑलवेज कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर्स, विच आई थिंक आई डिड रियली रॉन्ग. मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे सारी फ्रेंड्स की प्लेसमेंट हो रही है एंड आई एम द ओनली वन जिसकी नहीं हो रही.
ये फीलिंग आने लग गई थी. एंड देन इवेंचुअली आई रियलाइज ओवर टाइम कि मेरा एक्चुअल कंपटीशन खुद से ही है. क्योंकि हो सकता है कि जिस इंसान से मैं आज कंपेयर कर रही हूँ उसने मेरे से लाइक काफ़ी टाइम पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी हो, एंड इट इज़ ऑब्वियस कि उसका मुझसे पहले होगा अगर उसने मुझसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी तो. सो देन आई लाइक स्टॉप्ड कंपेयरिंग माई सेल्फ, एंड मैंने मतलब ये गोल सेट कर लिया बेसिकली कि आज मैं जितने क्वेश्चंस कर रही हूँ उसके कंपैरेटिवली नेक्स्ट डे मैं एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो ज़्यादा करूँ ही करूँ. सो I did that, and one of the most important thing that I realized over time is कि आप रिजल्ट के बारे में मतलब बिल्कुल सोचो ही मत, कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो. जस्ट कीप ऑन गिविंग योर इनपुट ऑन द कंसिस्टेंट बेसिस एंड रिजल्ट अच्छा आ ही जाएगा. भले ही लेट आएगा, हो सकता है काफ़ी टाइम लग जाए, बट आएगा ज़रूर. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लाइक इनपुट बहुत डाला, आपने हार्डवर्क किया है बट आपका कुछ रिजल्ट एट दी एंड आया ही नहीं. इट विल नेवर हैपन. सो रिजल्ट को मतलब रिजल्ट के बारे में सोचना एकदम बंद कर दो. जब आप लाइक रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हो या जब आप एक्सपेक्टेशन ले आते हो देन द थिंग्स गो रॉन्ग. ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस को मतलब एकदम निकाल दो दिमाग से, रिजल्ट को निकाल दो एंड जस्ट कीप ऑन गिविंग योर इनपुट. आपको प्रोसेस पर फोकस करना है ना कि गोल पर. अगर प्रोसेस सही हो जाएगा आपका देन गोल अपने आप ही अचीव हो जाएंगे. ठीक है. सो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटर्नशिप्स और योर प्लेसमेंट्स, just give 5 to 6 months full fledgedly to your preparation without thinking about the result कि clear होगा या नहीं होगा. And always have this in your mind कि low points हर किसी की लाइफ में आते हैं. You are not the only one. हर कोई इन्हीं phases से गुजर कर निकलता है. So just keep on giving your input. सो फाइनली कुछ महीनों की अच्छी खासी प्रिपरेशन के बाद आई स्टार्टेड सीइंग द रिजल्ट. मेरा सिस्को का ऑफ कैंपस टेस्ट क्लियर हो गया था एंड आई क्लियर्ड ऑल द 4 इंटरव्यूज एंड दे वेंट रियली वेल एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट कि इसमें तो हो ही जाएगा. एंड इट वॉज ऑफरिंग 27 LPA CTC. सो आई वॉज लाइक रियली हैप्पी कि अब तो मतलब हो गया, अब तो इतनी प्रिपरेशन वगैरह करने की ज़रूरत भी नहीं है. देन आई वॉज वेटिंग फॉर इट्स रिजल्ट, सिस्को का रिजल्ट. एंड व्हेन आई वॉज वेटिंग फॉर सिस्कोज रिजल्ट एट दैट टाइम माई करंट कंपनी विजिटेड माई कॉलेज एंड sorry I could not reveal the name of the company due to my college's policy and my company's policy as well. So yeah, तो मेरी करंट कंपनी ने विजिट किया ड्यूरिंग द टाइम एंड आई वॉज वेटिंग फॉर सिस्कोज रिजल्ट. ठीक है, तो इसका फर्स्ट राउंड हुआ एंड आई क्लियर्ड इट. आई डिड लाइक प्रीटी वेल इन इट एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सेकेंड राउंड के लिए भी मेरे को इंटरव्यू कॉल आ जाएगा. तो सेकेंड राउंड वॉज शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट डे. ठीक, तो उसमें लाइक शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स में मेरा नाम आया था एंड देन my second round was for the next day. तो yeah, and then next day जब like 10-15 minute पहले before my second round of my current company, I opened my Gmail to go through the interview link कि आया या नहीं आया अभी लिंक मेरे पास. तो then I found a mail from Cisco and I opened it and like I was expecting कि मेरा हो गया होगा, like offer letter होगा basically, ये congratulations mail होगा. Then I opened it and it said कि sorry, all the current positions are filled and as soon as any position gets clear up we'll reach out to you. And I was literally broke at that time. मतलब मैं आपको वो फीलिंग बता नहीं सकती, मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि मतलब वो काफ़ी अच्छे गए थे इंटरव्यूज़ एंड आई वॉज लाइक रियली एक्सपेक्टिंग कि इसमें तो हो ही जाना है, बट गॉड हैड सम अदर प्लान्स. सो लाइक 10-15 मिनट पहले ही मेरे सेकेंड राउंड के ये मेल मैंने पढ़ा एंड मतलब मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया था. एंड जैसे तैसे मतलब आई somewhere managed myself and I somewhere managed कि यार ठीक है, मतलब
ये हो गया ठीक है, बट ये अभी जो सेकेंड राउंड है इसको ख़राब नहीं करना उसके रिजल्ट की वजह से। एंड इस बार इस बार मेरी मतलब कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन थी नहीं अपना जो करंट कंपनी का मैं इंटरव्यू लेने वाली थी उसके लिए, कि होगा नहीं होगा। मतलब इस बार मतलब रिजल्ट के बारे में मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, मैंने बस यही मतलब दिमाग में रख रखा था कि बस अपना 100% देना है, बाकी रिजल्ट का जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि आप मतलब सिस्को वाले उससे भी देख सकते हैं कि रिजल्ट इज़ लाइक रियली अनसर्टेन, मतलब आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, भले ही आपका अच्छा जा रहा है फिर भी नहीं हो रहा तो आप मतलब क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, राइट। तो मैंने इस बार लाइक रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। ऑल्दो आई वॉज कॉन्फिडेंट दिस टाइम कि इसका सेकेंड राउंड क्लियर हो ही जाना चाहिए, बाकी रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो खैर बात की बात है। क्योंकि जो सिस्को का मैंने क्लियर किया था, लाइक ऑनलाइन टेस्ट भी क्लियर किया था, एंड ये ऑफ कैंपस था तो कंपैरेटिवली इन कैंपस से हार्ड ही होता है, तो वो भी क्लियर किया था एंड इसके चारों राउंड्स भी क्लियर किए थे। एंड ये 27 LPA CTC ऑफर कर रही थी, सो आई वॉज लाइक प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि ये वाला लाइक करंट वाला तो निकल ही जाएगा, इतना तो कॉन्फिडेंस है मेरे को अब अपने ऊपर। तो आई लाइक a few minutes later my second round started, and you guys won't believe like I was literally holding my tears। मतलब जैसे तैसे रोक रखे थे कि मतलब इंटरव्यूअर के सामने ना रो दूं, मैं बस आंसर कर दूं, फिर इंटरव्यू के बाद देखा जाएगा, जो रोना धोना है वो बाद में किया जाएगा। ये ख़राब नहीं करना चाह रही थी मैं सेकेंड राउंड अपना। सो वो मैंने जैसे तैसे दिया एंड लाइक वो भी काफ़ी अच्छा गया। एंड दिस टाइम आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मतलब ये क्लियर हो जाएगा सेकेंड राउंड इसका, बाकी रिजल्ट का तो खैर। तो आफ्टर आई गेस आफ्टर 2-3 days its result came, and boom, I was selected, and I was literally happy that day, and I was over the moon। एंड मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया, मॉम डैड को बताया, भाई को बताया कि आई गॉट दिस। कैसे बताऊँ मैं, या आई गॉट दिस, आई गॉट सेलेक्टेड इन दिस कंपनी, एंड आई कुड लाइक रियली सी द हैप्पीनेस एट देयर फेसेस। मतलब मेरी मम्मा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। आई विश आई कुड लाइक रिकॉर्ड दैट मोमेंट, बट तब नहीं पता था कि मैं वीडियो बना रही होंगी इस पर। सो या मतलब एवरी वन वॉज रियली हैप्पी, एंड पापा के आँखों से तो मतलब आंसू ही आ गए थे। सो या सो दिस वॉज माई प्लेसमेंट जर्नी, एंड आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा इससे। एंड मेरे मम्मी और मेरे भाई मेरे लाइक कांस्टेंट सपोर्ट रहे थे इस जर्नी में। मतलब अगर मेरा लाइक किसी कंपनी में नहीं होता था, आई यूज़ टू क्राई, एंड मतलब मैं काफ़ी लो फील करती थी। दैन वो मेरे को हमेशा समझाते थे कि कोई बात नहीं कशिश, मतलब कीप ऑन ट्राइंग, कोई बात नहीं, इस कंपनी में नहीं हुआ, क्या पता आगे किसी और इससे अच्छी कंपनी में हो जाए। एंड दे वर राइट, मतलब जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उन कंपनीज में नहीं हुआ, तभी जाके मैंने मतलब और प्रिपरेशन करी, एंड देन मेरी और अच्छी कंपनी में हुआ। सो लाइक गॉड हैड सम अदर प्लान्स, या सो लाइक आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग कि आप लाइक कोशिश करते रहिए, लो फील मत करिए यार, सबके साथ ऐसा ही होता है। मतलब हर कोई नहीं पहली बार में ही तीर मार लेता, राइट। तो प्रिपरेशन करते रहिए, एंड इवेंचुअली यू विल सी द रिजल्ट्स। So finally I'm placed, and I cannot disclose the name of my company and my exact package, and I hope you guys have learned something from my placement journey, and thank you so much for watching my video till the end, and don't forget to like, share and subscribe my video. And if you wanted to connect with me, you can connect with me on LinkedIn. I'll give the link to my LinkedIn account in the description below. So bye bye and take care.